Hello dear homeopaths, I hope you all are doing well. Today I am going to share with you a cured case of arthritis. This is an old video which was shot in April 24 and it was supposed to be uploaded on the occasion of Hanuman Day, that is on 10th April, but due to some technical issues and lack of time I could not edit it and could not upload it. So now uploading it today. I hope you will like this video and find it useful in your practice. Enjoy the video. Thank you. जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमन सर, जय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर. Dear homeopaths, I welcome you to my YouTube channel. I wish you all a very happy Hanuman Day. I wish you all a very happy World Homeopathy Day. Today, 10th of April, is very auspicious day for not only for homeopaths but for the entire medical field. 10th April 1755, a day of advent of father of homeopathy, Dr. Hahnemann. I am very grateful to Dr. Hahnemann sir for discovering such a great science, homeopathy, without which no real cure of so-called chronic incurable disease was possible. So, practicing true homeopathy according to laws and principle of the homeopathy directed by Dr. Hahnemann sir in his book Organ of Medicine will be a true tribute to this great soul, as well as spreading the true knowledge of homeopathy to other homeopaths and guide them, and you help them to cure, will be a true tribute to this great Mahatma Hahnemann. So, in an attempt to spread the knowledge of true homeopathy, today I am going to share with you my experience and limited knowledge via a short case. So let us discuss a case. Short. 70 years old lady from a remote rural area consulted me for polyarthritis since last 8 months. Okay? With the chief complaints of extreme pain and stiffness in the cervical region, and the pain was extending to the upper back, chest, and bilaterally towards her shoulder. She had extreme pain in lumbar region, especially in the right side. It was very difficult for her to rise up from sitting posture, and also during the process of sitting she had severe pain in the right hip joint. तो पेशेंट ने बोला मुझे इतना दर्द होता है सर कि जब दर्द बढ़ता है ना तो मुझे अपना राइट हिप एरिया फील ही नहीं होता, मुझे लगता है कि वो कुछ है ही नहीं वहाँ पे. सो देयर वॉज अ नंबनेस एट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट. देयर वॉज पेन इन हर knees and ankle joint, toes, wrist, fingers, elbow. She was not able to walk properly due to extreme pain of her lower limb. She had to take support to walk. She was unable to sleep soundly due to extreme pain in the lumbar region. Her pain aggravated at night when she lay down in the bed to sleep. There was a spasm and stiffness of the muscles of the affected limbs. The veins of the affected part was very prominent because of inflammation and swelling. गांव के पेशेंट से मेंटल सिम्टम्स निकलवाना, उसकी लाइफ हिस्ट्री को पूछना बड़ा टफ होता है.
क्योंकि उसको लगता है कि ये मैं जॉइंट पेन के लिए यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आया हूँ और ये डॉक्टर क्या मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है। तो पेशेंट ज़्यादा खुलते नहीं हैं, ज़्यादा बताते नहीं अपने बारे में। तो इस केस में भी जब मैंने उस पेशेंट लेडी को पूछा कि तुमको क्या स्ट्रेस है लाइफ में, जिस समय ये प्रॉब्लम शुरू हुई उस समय आपके लाइफ में क्या हुआ था, क्या क्या स्ट्रेस था, क्या टेंशन था, तो पेशेंट ने मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। बोलती सब कुछ ठीक है सर, मुझे बस ये जॉइंट पेन है, इसके अलावा लाइफ में सब कुछ ठीक है, आप बस ये ठीक कर दो, इसी के लिए मैं आई हूँ आपके पास। पेशेंट से मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। पेशेंट बोलती है कि डॉक्टर साहब जितना जीना होगा उतना जिएंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे, नहीं ठीक होगा या ये बीमारी अगर नहीं ठीक होगी तो मेरे साथ जाएगी। तो मैंने यहीं से क्वेश्चन उठाया कि क्या लगता है आपको ठीक नहीं होगी? तो पेशेंट बोलते हैं ठीक हो जाऊं डॉक्टर साहब, यही सोच के तो आपके पास में आई हूँ। उसने अपने एक रिलेटिव का रेफरेंस देते हुए मुझे बताया कि आपने उसका इलाज किया था तो वो ठीक हो गई थी, उसको भी लंबर रीजन में पेन था, तो उसी ने मुझे, उसी से मैं आपका एड्रेस लेकर, आपका मोबाइल नंबर लेकर अपॉइंटमेंट लेके आ रही हूँ, आपसे ट्रीटमेंट लेने आई हूँ। हमारे गांव के और भी पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं आपसे, मैं भी यही आस लेके आई हूँ कि आप मुझे भी ठीक कर देंगे। मैंने बोला डिजीज़ की शुरुआत कैसे हुई? तो उसने बताया कि सर मई 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक का लॉकडाउन चल रहा था, उसी समय मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ। पहले मुझे ये राइट हिप जॉइंट में पेन महसूस हुआ, फिर वो बटक्स तक वो फैल गया, फिर इधर लंबर रीजन तक फैलने लग गया। पहले एक ही साइड होता था राइट साइड में, फिर वो लेफ़्ट लंबर रीजन तक फैलने लग गया। धीरे धीरे करके वही पेन फिर मेरे क्या बोलते हैं नीज़ में, एंकल, टोज़, फिर उसके बाद में फिर ये रिस्ट, एल्बो और फिर सर्वाइकल रीजन तक आ गया। फिर धीरे धीरे पूरे कमर में फैल गया और फिर अभी ये गर्दन तक के आ गया है। सर इतना दर्द होता है फिर भी मैं अपने हस्बैंड से एक बार भी नहीं बोलती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा इलाज करवाओ। तो बहुत पिक्यूलियर था। मैंने पूछा कि क्यों नहीं बोलते हो? उसने बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत मतलब झन्ना जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए बोलो तो बहुत झन्ना जाते हैं मतलब कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं और रूडली जवाब देते हैं, नहीं करवा रहा हूँ क्या ट्रीटमेंट? करवा तो रहा हूँ, तुम ठीक नहीं हो रही हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये सुन के डॉक्टर साहब मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। मन में आता है कि फालतू बोल पड़ी, इसको नहीं बोलना था। उसके बाद में फिर पेशेंट बताती है कि डॉक्टर साहब वैसे तो वो लोग अपनी तरफ से मेरा इलाज करवा रहे हैं, मेरी फैमिली वाले अपनी तरफ से मेरा इलाज करवा रहे हैं, मैं बहुत तकलीफ़ पा रही हूँ सर, सब ऊपर वाले के हाथ में है, मैं उसके ऊपर सब छोड़ दी हूँ कि तुम जानो, मैं टेंशन नहीं लेती, टेंशन लूँगी तो मुझे ही तो नुकसान होगा ना, किसी और को थोड़ी ना होगा। मैंने पूछा उसको कि रात में जब दर्द बढ़ जाता है तो आप अपने हस्बैंड को या किसी को उठाते हो कि नहीं उठाते? तो पेशेंट ने रिप्लाई किया, सर मैं किसी को नहीं उठाती, क्यों मैं किसी की नींद डिस्टर्ब करूं, खुद रोते रहती हूँ, बेड में बैठ जाती हूँ और मसाज करते रहती हूँ, दबाते रहती हूँ पैर को, कमर को। मैंने उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड की नींद डिस्टर्ब मत हो करके आप नहीं उठाते? क्वेश्चन मार्क।
तो फिर वो उसकी सेंसिटिविटी ने रिएक्शन दे दिया, बोली कि खिसियाही करके नहीं उठाऊँ डॉक्टर, छत्तीसगढ़ी में बोली। इसका मतलब है कि डांटेंगे करके नहीं उठाती डॉक्टर साहब, बहुत सुनाते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं नहीं उठाती। फिर मैंने आगे क्वेश्चन किया पेशेंट से कि इतनी तकलीफ़ है, फिर काम कैसे चलता है आपका? घर में तो बहुत काम रहता होगा। क्या करूं डॉक्टर साहब, मजबूरी में सब करना पड़ता है। कब तक काम पड़ा रहेगा करके मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, मेरी बहू, ये लोग सब खेत चले जाते हैं, घर पे मैं बच जाती हूँ। तो घर का काम तो करना पड़ेगा ना। तो चाहे कितना भी पेन हो, ना चाहते हुए भी धीरे धीरे करते रहती हूँ काम। क्योंकि अगर वो लोग खेत से आए, खाना नहीं बना है, काम नहीं हुआ रहता है घर का, तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं, बहुत सुनाते हैं मुझे कि सब लेडीज़ घर का काम करती हैं, कि तुमसे घर का काम भी नहीं होता है, जब देखो बीमार पड़े रहती हो, तुम किसी काम की नहीं हो। मैं चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती। लगता है सही तो बोल रहे हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये इस बीमारी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मेरी सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। पास्ट हिस्ट्री पूछने पे पेशेंट को याद आया कि लास्ट ईयर 2019 में नवंबर दिसंबर में वो बाइक से, अपने हस्बैंड के साथ बाइक से कहीं जा रही थी, तो अचानक वो बाइक से गिर गई। उसको समझ में ही नहीं आया। पेशेंट ने बताया कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं कैसे गिर गई, क्यों गिर गई, कब गिर गई, क्या हुआ, मैं गिर गई। उसके बाद से ही मुझे ये पेन शुरू हुआ है। आजकल मैं बहुत भूलने लगी हूँ। मैं कहाँ जा रही थी ये भी मैं भूल जाती हूँ। मैं क्या काम करने वाली थी, मैं यहाँ क्यों आई, ये भी भूल जाती हूँ। ठीक है, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, उसकी सिमिलिमम प्रिस्क्राइब की, और पेशेंट इससे क्योर हुआ। सो इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए और फिर से इस हिस्ट्री को सुनिए और अपना एनालिसिस करने की कोशिश करिए। आपने क्या इम्पोर्टेंट रूब्रिक चूज़ किया और उसके बेसिस पे आपने क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए। द थर्मस ऑफ द पेशेंट वॉज हॉट, शी वॉज थर्स्टलेस, there was extreme weakness, there was no appetite. So